اگر قرآن عالمگیر ہے تو اس میں ان انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کے علاوہ دیگر قوموں میں آئے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ جب ہم قدیم یورپ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مذہب نے ان پر منفی اثر ڈالا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم نجات کو مقدس کتاب کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتاب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ مہذب ہے؟ امام ٹام فکینی، ہماری تفتیشی بیٹھک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس بار ہم نے قرآن کے بارے میں زیادہ مشکل سوالات تیار کیے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ وہی ہے جو نازل ہوا تھا؟ کیا یہ 1400 سال میں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ یہ جاننے کے بہت سے طریقے ہیں کہ ہمارے پاس موجود قرآن وہی ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ سب سے پہلی بات، جس طریقے سے اسے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، یہ اپنی درست ترتیب میں اور پورے طور پر انہیں رمضان کے مہینے میں پڑھایا گیا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں صحابہ کی امامت فرماتے تھے، لہٰذا وہ پورے قرآن میں ہونے والے تازہ ترین اپڈیٹس کا خود مشاہدہ کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا تھا، لہٰذا اس وقت بہت سے صحابہ قرآن کے گواہ تھے اور انہوں نے اسے مکمل طور پر حفظ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حفظ کا یہ سلسلہ اپنے شاگردوں میں اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں میں جاری رکھا، لہٰذا یہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہے پہلا طریقہ، یعنی زبانی سلسلہ یا سند، اور یہ سچ ہے کہ منتقلی کا زبانی سلسلہ تب انتہائی غیر معتبر ہو جاتا ہے جب آپ اس تصدیق میں مناسب احتیاط نہ برتیں کہ اس سلسلے میں کون لوگ شامل ہیں اور وہ کتنے معتبر ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ اپنے دین میں ہم راویوں کو پرکھنے کی یہ احتیاط رکھتے ہیں، ہم ان کی سوانح حیات جانتے ہیں، یہ محض نام نہیں ہوتے، وہ کون تھے، وہ کہاں گئے تھے، کیا وہ واقعی اس شخص سے ملے جن سے سیکھنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہم اس کی صرف ظاہری اہمیت دیکھنے کی بجائے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اسے تحریری طور پر محفوظ کرنا ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال کے اندر پورا قرآن اپنی حتمی شکل میں لکھا جا چکا تھا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اگر آپ اس کا موازنہ کسی اور کتاب سے کریں، مثلا آپ بائبل لے لیں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ کو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 75 سال گزرنے تک نہیں لکھا گیا تھا، تو ہم یہاں بہت ہی قریبی زمانے کی بات کر رہے ہیں جس کے چشمدید گواہ صحابہ تھے جنہوں نے اسے جانا اور اس میں شریک ہوئے۔ کسی کو بھی اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے نتائج پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اوہ نو یہ در حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تحریری نسخے ہیں اور پھر ہمارے پاس ریسرچرز، علم انسان کے ماہرین اور دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس پر ریسرچ کی اور وہ ان تمام نسخوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا یا کم از کم اس کے قریب ترین زمانے کا قرار دیتے ہیں۔ اور فرض کریں اگر آپ پچھلے 100 سال میں جائیں تو ایسے نسخے موجود ہیں جن کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے 100 سال کے اندر تیار کیے گئے تھے۔ آپ کے پاس ایسے 50 سے زائد اصل نسخے موجود ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نسخے قرآن کے کتنے حصے پر مشتمل ہیں، اور یہ ہم سینہ بسینہ منتقلی کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کا بھی ذکر نہیں کر رہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھیجے تھے، بلکہ یہ ان کے علاوہ ہیں۔ یہ نسخے آج ہمارے پاس موجود قرآن کے 96% سے زیادہ حصے پر مشتمل ہیں۔ یہ واقعی بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ سے اس کا موازنہ کریں، اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد کا زمانہ دیکھیں تو صرف ایک نسخہ ملتا ہے جو آج موجود ہے جس کا نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے کتنے حصے پر مشتمل ہے؟ صرف ایک بزنس کارڈ کے سائز کے برابر۔ گوسپل آف جان کی صرف ایک آیت۔ جب نیو ٹیسٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے نسخوں کی بات ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے 200-300 سال بعد کا زمانہ آنے تک آپ کو کوئی خاص مطابقت نہیں ملتی، تو اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصل بائبل سے کتنا ہم آہنگ ہے۔ کیا ان نسخوں اور آج ہمارے پاس موجود قرآن میں کہیں کچھ فرق ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، یہ ان لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے جو اس کے حافظ ہیں، اور یہ ان کتابوں میں زندہ ہے جو لکھی گئیں اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی۔ لہٰذا ہمیں مختلف طریقوں سے یہ اطمینان حاصل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور بھی مختلف مقدس نسخے ہیں جیسے بائبل، تورات اور ہندو مت کے نسخے، کیا وہ بھی مجھے دلی سکون دے سکتے ہیں؟ صرف قرآن پر ایمان ہی میرے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ مسئلہ کسی ایک کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب یا ایک نسخے کے مقابلے میں دوسرے نسخے پر ایمان کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ جاننا ہے کہ آپ کے خالق نے آپ سے کیا کہا ہے۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کیونکہ وہ واحد راستہ جس سے آپ کو سکون، حقیقی سکون ملے گا، وہ اپنے خالق کی باتوں کو جاننا اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ سوال پھر یوں ہو جاتا ہے، اچھا میں کیسے بتاؤں کہ کون سی بات
खालिक की तरफ से है और कौन सी नहीं। लिहाजा ये काम आपको खुद करना होता है। हिंदू नुस्खे भी मौजूद हैं, उन्हें किसने लिखा, वो कब लिखे गए, पहली दफा लिखे जाने के बाद क्या वो तब्दील होते हैं, लिखने वाला कौन है, उनका असल इल्म रखने वाला शख्स कौन है, अक्सर व बेशतर लोग नहीं जानते। बाइबल का भी यही मामला है। क्या ये वाकई मेरे मालिक का कलाम है? क्या ये वाकई खुदा के अल्फाज हैं, मेरे रब के अल्फाज? किसने ये लिखे? आपको पता चलेगा कि गॉस्पेल्स के असल नुस्खों पर मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के नाम नहीं थे। ये नाम बाद में शामिल किए गए, सिर्फ उन्हें मोतबर बनाने के लिए। मैथ्यू ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू नहीं लिखी, मार्क ने गॉस्पेल ऑफ मार्क नहीं लिखी। ये चर्च की तरफ से बाद में इजाफे किए गए। तो फिर उन्हें किसने लिखा? हमें नहीं मालूम। उन्होंने कब लिखी? शायद ईसा अलैहिस्सलाम की कई नस्लों बाद। क्या इनमें तजादात हैं? जी हाँ, बहुत सारे हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन 2 बार खत्म होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किताबे पैदाइश 2 बार शुरू होती है। आपको पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ हिस्से जो मुबैना तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखे हैं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी जारी रहे। तो क्या ये मुस्तनद है? क्या ये खुदा का कलाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। और दर हकीकत कैथोलिक चर्च भी इसे तस्लीम करता है। वो बाइबल को खुदा का असल कलाम नहीं कहते, वो इसे खुदा का इल्हामी कलाम कहते हैं। लेकिन अगर आपका यही मौकफ है तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या इससे बेहतर कोई चीज मौजूद है? क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे मेरे खालिक की मर्जी के करीब करे? और अगर उसका कोई इम्कान है भी तो उसकी तलाश आप पर इखलाकी लिहाज से फर्ज है। ये इखलाकी तौर पर जरूरी है कि आप तहकीक करें। हम मुसलमान यहाँ खड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि ये किताब अल्लाह का असल कलाम है, जो अपने से पहले की तमाम किताबों की जगह ले लेती है और इस वक्त मौजूद किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा मुस्तनद है। लिहाजा अब हर एक का फर्ज बनता है कि वो सच को जानने की कोशिश करे। अगर कुरान आलमगीर है तो इसमें उन अंबिया का जिक्र क्यों नहीं है जो मिडिल ईस्ट के अलावा दीगर कौमों में आए? क्योंकि वही की किताब का मकसद लोगों को कायल करना है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानो ताला खालिक कायनात अपने मुखातिब को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ वो उन्हें बता रहे हैं वो सच है, ताकि लोग उसके सामने झुक जाएं। ये एक इखलाकी हुक्म है। अगर मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या मैं आपको मिस्त्री मजदूरों की मिसालें दूंगा? क्या ये आपसे मुताबिकत रखेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और इससे उस पैगाम की तासीर पर असर पड़ेगा जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपसे उन चीजों के मुतालिक बात करनी होगी जो आप जानते हैं। अगर मैं आपसे आपके इल्म में मौजूद चीज पर बात करूंगा तो आप इसको समझ सकेंगे और एक दुरुस्त फैसला कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपको कोई फरार का रास्ता नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपका फैसला या तो एक इखलाकी कामयाबी हो कि आप मुखलिस हैं, या इखलाकी नाकामी कि आप मुखलिस नहीं हैं। अगर मैं आपको ऐसी जबान, मिसालें या तशबीहात सुनाऊं जो आप नहीं समझते तो इससे मेरा पैगाम बेकार हो जाएगा। फिर मुमकिन है आप मेरा मुखलिसाना पैगाम भी मुस्तरद कर दें। आप इसे मुस्तरद कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इसे समझ नहीं पाए, और इल्हामी कलाम इसी चीज से बचाता है। तो फिर 600 की दहाई के सहराई अरबों को चीन या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या अमेज़न या किसी भी जगह भेजे जाने वाले पैगंबरों या आइंदा आने वाले पैगंबरों के मुतालिक बताने का क्या मकसद रह जाता? इससे वो सिर्फ कंफ्यूज होते और उन्हें फरार होने का मौका मिल जाता। वो आसानी से ये कह देते, हम इस पर यकीन नहीं करेंगे, हमने इस बारे में कभी नहीं सुना, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जबकि वो चीजें जो आलमगीर हैं, जरूरी नहीं कि वो मिसालें हों या अंबिया की शनाख्त या वो कहानियां जो बयान की गई हैं, बल्कि ये इखलाकी असूल और इखलाकी निज़ाम है, तौहीद और वो नजरियात हैं जो इन तमाम कहानियों और मिसालों को बुनियाद फराहम करते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि कुरान खुदा का कलाम है? सबूत यह है कि अगर कोई चीज आपको वो बातें बताए जिन्हें जानना नामुमकिन हो या किसी इंसान के लिए जानना नामुमकिन हो, तो उसका माखज गैर इंसानी होता है। अगर मैं कभी अंकारा नहीं गया और मैं आपको अंकारा के बारे में बताना शुरू कर दूं, सिर्फ आम चीजें नहीं जो मैं विकिपीडिया पर देख सकता हूँ, मैं आपको वहाँ की सड़कों और सीमित बेचने वाले लोगों के मुतालिक और सीमित के मुतालिक और इसकी खुशबू और जायके के मुतालिक बताना शुरू कर दूं और फिर इस गली और उस गली के बारे में, तो जल्द ही आप पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ये सब मेरे अपने तजर्बात नहीं हैं। इन मालूमात का माखज मेरे अलावा कोई और है। इसी तरह कुरान आपको वो चीजें बताता है जो किसी के लिए भी जानना नामुमकिन है। इनमें से कुछ चीजें तारीखी हैं, जैसे कि उस वक्त बाजंतीनियों और ससानियों के दरमियान जंग जारी थी। बाजंतीनी बुरी तरह हार रहे थे और अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें कुरान में बताया कि चंद सालों में वो लोग बाजी पलट देंगे और वो जीत जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये बताना नामुमकिन था। दूसरी चीजें भी हैं जो साइंसी हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है कि कायनात फैल रही है, वो फरमाता है और बेशक हम इसके फैलाने वाले हैं। ये ऐसी बात है जो उस जमाने के लोग, किसी को क्या पता कि उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये बातें हमारे लिए और ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अपने बारे में हैं जिन्हें मुमकिन तौर पर हम नहीं जान सकते। तो ये वजाहतों को चैलेंज करता है। कोई ऐसी बात जो इंसान के दायरे से बाहर हो, कोई ऐसी बात जो इंसानी कोशिशों या सलाहियतों से बालातर हो, ख्वाह वो मामूली इंसान हो या गैर मामूली, कोई ऐसी चीज जो अनदेखी हो, इंसानियत से बालातर कुछ उलूही चीजें।
जब हम कदीम यूरोप को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह मजहब ने इन पर मनफी असर डाला। जब ऐसा होता है तो हम निजात को मुकद्दस किताब के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में दिया जा सकता है। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी की बुनियाद कायम करने के लिए एक हकीकी वही की अहमियत समझ आती है, ना कि कोई जाली वही या कोई और खलत मलत चीज। क्योंकि आज जो बाइबल हमारे पास है और वो बाइबल जो कुरान वुस्ता के जमाने से हमारे पास है, वही बाइबल नहीं है जो खालिक कायनात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी थी। इसे तब्दील कर दिया गया, इसके साथ खिलवाड़ किया गया। कैथोलिक चर्च ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी। लिहाजा जब रूमियों ने ईसाईयत को अपनाया, इसमें से बहुत कुछ इब्तदाई 100 या 150 सालों में जाया हो गया। इससे पहले कि इसे सही तरीके से कागज पर इस तरह लिखा जाता कि वो महफूज रहे, तो जो दस्तावेज हमारे पास हैं और जिसे हम बाइबल कहते हैं, वो यकीनी तौर पर 100% मुस्तनद खालिक की असल वही नहीं है। लिहाजा अगर आप मुआशरे की बुनियाद इस पर रखेंगे तो गोया आपने अपना घर रेत पर बना लिया। आपने ऐसी चीज बनाई है जिसे आप हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी बुनियादें बहुत ही कमजोर हैं। और दरअसल हम आज भी मुआशरे को ऐसी कमजोर बुनियादों पर खड़ा करने की कोशिश के नताइज भुगत रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूरोपीय मजहब के तजर्बे से हर मजहब नहीं गुजरा है। ये आलमगीर नहीं है। हमारे पास एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। सिर्फ ये कहना कि यूरोप कुरान वुस्ता में जद्दोजहद कर रहा था। बाइबल के जेर साया जिंदगी गुजारने का कोई असर कुरान के जेर साया या कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ किताबें हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हदायत के मजमूए हैं। अगरचे वो किसी न किसी तरह एक दूसरे से मुशाबा हो सकते हैं, मगर एक मुस्तनद है और दूसरा नहीं। और हमारे तारीखी तजर्बात बहुत मुख्तलिफ हैं। कुरान को एक ऐसी किताब कहा जाता है जो अमन और सुकून का पैगाम देती है, लेकिन कुरान में जिहाद के तसव्वुर के मुतालिक क्या कहेंगे? किसी को कत्ल करने का अमन से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई भी लोगों को कत्ल करना नहीं चाहता, और दर हकीकत अल्लाह भी यही फरमाता है। अल्लाह का इरशाद है, जहाद तुम पर फर्ज कर दिया गया है, हालांकि तुम इसे नापसंद करते हो। लेकिन अल्लाह कुरान में एक और जगह ये भी फरमाता है कि अगर हम ये फर्ज ना करते, अगर ये मौजूद ना होता, तो हर एक मस्जिद, चर्च और इबादत का और खानका को तबाह कर दिया जाता। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन मुख्तलिफ इबादत गाहों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। वो सिर्फ मजहबी घर, इबादत गाह या मसाजिद का जिक्र नहीं करता, वो दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों का भी जिक्र करता है। और बात यह है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मौका मिलने पर आपको खत्म कर देंगे। ये एक हकीकत है। लिहाजा जिहाद तब जरूरी हो जाता है ताकि उन लोगों की तरफ से नुकसान को रोका जा सके। कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है, इसलिए जिहाद का वजूद जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो कोई भलाई, कोई इंसाफ, कोई अमन बाकी ना रहता। ये चीजें हमेशा फसाद नहीं होती। कभी कभी अमन हासिल करने के लिए हमें उन लोगों को रोकना पड़ता है जो अमन के लिए खतरा होते हैं। बहुत से गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि मुसलमान उन्हें मारना चाहते हैं क्योंकि कुरान में एक आयत है, उन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो। आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे? ये आयात सियाको सबाक से हट कर ली जाती हैं। इन आयात में से एक सूरह बकरा में है जहां अल्लाह सुब्हानो ताला का जिहाद के मुतालिक इरशाद है। वो फरमाता है, उन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो। सवाल ये है कि किन है? कोई भी चलता फिरता गैर मुस्लिम या चलता फिरता ईसाई या कोई भी नहीं। अल्लाह एक बहुत खास सूरत हाल और लोगों के एक मखसूस गिरोह के बारे में बात कर रहा है। और फिर इस सूरत हाल के बाद उन सब के लिए भी जो हुकूमत में या बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में हो जिसमें ये मखसूस गिरोह था, लेकिन लोग इससे जुड़ी अगली आयत को शामिल नहीं करते जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, अगर वो तुमसे लड़ना बंद कर दे तो तुम भी लड़ना बंद कर दो। अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो ये मखसूस आयत दूसरी आयत की तरह बाहमी जंग के हवाले से है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुसलमान न हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस आयत का ताल्लुक उन लोगों से है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दर हकीकत इस मखसूस आयत में अगर आप इसका जायजा लें और उन्हें उनके घरों से निकाल दो जैसे उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, तो यहाँ एक सियाको सबक मिलता है जहाँ हम उन नुकसानदेह इक़दामात का जवाब दे रहे हैं जो दूसरे लोगों ने हमारे साथ जारहाना तौर पर किए हैं। और इसके बावजूद जब वो हमसे लड़ना बंद कर दें और साबित कर दें कि वो हमें मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो हम भी रुक जाएंगे क्योंकि हम गैर जरूरी तौर पर लड़ना नहीं चाहते। वो दूसरी आयत जो मशहूर है वो है सूरह तौबा की 5वीं आयत, जहाँ अल्लाह तकरीबन यही बात फरमाता है, अब तुम इन मुशरिकों को कत्ल कर दो जहाँ कहीं भी तुम इन्हें पाओ। और यहाँ भी क्या अल्लाह हर एक मुशरिक, जमीन पर बसने वाले हर काफिर के बारे में बात कर रहा है, या वो एक बहुत मखसूस गिरोह के बारे में बात कर रहा है जो एक बहुत मखसूस जुर्म का मुर्तकिब हुआ था और फिर पूरी तारीख में इस जुर्म के मुर्तकिब होने वालों के बारे में? दूसरी बात, इसका जवाब है यहाँ एक सियाको सबाक है, क्योंकि बिल्कुल अगली ही आयत में अल्लाह एक मुख्तलिफ गिरोह के मुशरिकों के बारे में बात करता है जो हकीकत में अमन के मुआहदे के अहल हैं। वो फरमाता है, अगर कोई मुशरिक जो तुम्हारे साथ तजारत करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तुम्हें कत्ल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तजारत करना चाहता है
तो उसे तजारत करने दो, उसे मुसलमानों के दरमियान आने दो। शायद वो कुरान सुने और शायद वो अगर इस्लाम कबूल ना भी करे तो इस्लाम के बारे में मुस्बत राय रखे। तो अगर आप हकीकत में सियाको सबाक को देखें, कुरान में सिर्फ सियाको सबाक से हटकर आयात ना उठाएं, तो आप देखते हैं कि ये आयात बहुत मखसूस सूरत हाल पर बात कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि किताब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मुहज़्ज़ब है? अगर हमारे पास कोई बामकसद पैमाना नहीं है तो ऐसी कोई चीज या तरीका नहीं है जो तहजीब की पैमाइश कर सके। अगर हम देखें कि आज हम मुआशरे में क्या कर रहे हैं, क्या ये मुहज़्ज़ब है या नहीं। चले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये मुहज़्ज़ब है। शायद 5 साल या 10 साल में हम इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि ये नहीं है। जो काम लोग 100 साल पहले कर रहे थे या 200 साल पहले, तो हम माजी की तरफ देखकर कहते हैं, ओ ये लोग कितने गुमराह थे। तो अगर आपके पास कोई बामकसद पैमाना नहीं है, आपके अलावा किसी तीसरे फरीक के पास, किसी ऐसे शख्स के पास जो मफादात के तसादुम का शिकार न हो, तो ये तसव्वुर कि क्या अच्छा है और क्या मुहज़्ज़ब है हमेशा गैर यकीनी रहेगा। ये हमेशा बदलता रहेगा, हमेशा तब्दील होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी बुरी तवक्कुआत को किसी आलमगीर जरिए से खालिक से हासिल करते हैं तो ये तसव्वुर मजबूत होगा और आपको हमेशा और हर तरह की सूरत हाल में रहनुमाई मिलेगी। कुरान में वरासत का कानून है जिसके मुताबिक मर्दों के लिए 2 हिस्से हैं, औरतों के लिए 1 हिस्सा है। क्या ये इंसाफ है? सबसे पहली बात, कुरान में इस तरह नहीं कहा गया। कुरान कहता है कि भाइयों और बहनों के दरमियान, यानी भाई अपनी बहनों से 2 गुनी विरासत हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप दीगर सूरत हाल में देखें तो ये मर्द और औरत के हवाले से तकसीम नहीं है। मिसाल के तौर पर विरासत का पाया जाने वाला सबसे बड़ा मुकर्ररा हिस्सा 2 या ज्यादा खवातीन के लिए है, 2 या ज्यादा बेटियों के लिए। 2 या ज्यादा बेटियां मरने वाले की जायदाद का 2/3 हासिल करती हैं। लिहाजा ये वालिद, चचा, दादा के मुकाबले में भी ज्यादा है और इस लिहाज से बाकी जो शख्स भी बचेगा वो कम विरासत पाएगा। लिहाजा ये एक सादा मर्द औरत की तकसीम नहीं है। हकीकत में ऐसे बहुत से हालात हैं जिनमें खवातीन मर्दों से ज्यादा विरासत हासिल करती हैं। ताहम ऐसे हालात भी हैं जहां मर्द खवातीन से ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्यों, इसका मकसद क्या है। और वजह यह है कि शरीयत हमारे खानदानी इंतजामात के मामले में गैर जानिबदार नहीं है। ये असल में खास किस्म के खानदानी ताल्लुकात और खानदानी निजाम की हौसला अफजाई करने की कोशिश करती है। आजकल की जदीद शहरी दुनिया में लोग महसूस करते हैं कि गैर मुनसिफाना है, क्योंकि वो तसव्वुर करते हैं कि मसलन बहन बजरिया हवाई जहाज आ रही है, उसके वालिदैन का या वालिद में से किसी का इंतकाल हो गया। बहन न्यूयॉर्क से आती है और भाई कैलिफोर्निया से आता है। दोनों आकर अपने अपने हिस्से के पैसे लेते हैं और दोबारा अपनी अलग जिंदगी गुजारने घर चले जाते हैं। शायद साल में एक बार एक दूसरे को फोन कर लेते हों। शरीयत के मुताबिक ये खानदान नहीं है। और शरीयत चाहती है कि खानदान आपस में इससे ज्यादा जुड़े हों, उनमें इससे ज्यादा वाबस्तगी हो और एक दूसरे पर इससे ज्यादा इन्हसार करें। लिहाजा शरीयत हमसे जिस किस्म का खानदान चाहती है वो एक ऐसा खानदान है जिसमें लोग एक दूसरे पर इन्हसार करते हों और कुछ लोगों पर जिम्मेदारी होती है और कुछ लोगों पर मखसूस फराइज आयद होते हैं। ये फराइज अपने साथ इजाफी फवायद लाते हैं। मिसाल के तौर पर भाई अपनी बहन की माली जिम्मेदारी उठाता है। अगर उसकी बहन को तलाक हो जाए, अगर उसकी बहन बेवा हो जाए, अगर उसकी बहन पर मुश्किल वक्त आ जाए और उनके वालिदैन भी ना हो, तो वो कहाँ जाएगी? भाई मौजूद है, शरीयत यही कहती है। और अगर भाई उसके लिए मौजूद है तो उसे कुछ इजाफे मिलना चाहिए ताकि अखराजात का बोझ उठा सके। बहन का खर्च उठाने के लिए उसके पास माली वसाइल होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि उसे बहन की कफालत से इनकार करने की कोई वजह मिले, इसलिए विरासत के मामलात में उसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उस पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। अगर फायदा मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर फायदे के साथ फर्ज की अदायगी बढ़ जाती है और आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो बात सिर्फ ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब हमारा रहन सहन इस तरह नहीं है तो हम विरासत के कवानीन क्यों ना बदल लें। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी अपनी भलाई के लिए है कि मुआशरे की तख्लीक इसी तरह हो। इसी में आपकी भलाई है कि आपका खानदान इसी तरह बना हो। और अगर हमारे खानदान और मुआशरे इस हकीकत की कासी नहीं करते तो हकीकत में जो चीज तब्दील होनी चाहिए वो शरीयत और विरासत का कानून नहीं, बल्कि दरअसल हमारे खानदानों और मुआशरों को तब्दील होना चाहिए। हम जानते हैं कि इस्लाम में अल्लाह एक है, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने लिए हम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी वजाहत कैसे करेंगे? जबान के इल्म में इसे शाही हम कहा जाता है। मसलन आपका इंग्लिस्तान जाना हो और अगर आप मलिका की बात करें या अगर मलिका कोई हुक्म जारी करे तो वो मैं नहीं कहेगी बल्कि हम कहेगी। यहाँ तक कि आज की अरबी जबान में भी अगर मैं अपने से बड़े किसी शख्स, अपने से ज्यादा इल्म वाले या शेख या स्कॉलर्स वगैरह से मिलूं तो मैं उसे बतौर वाहिद मुखातिब नहीं करूंगा। मैं उसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा आप कैसे हैं, हालांकि वो एक ही शख्स होगा। हम जबान में ऐसा इसलिए करते हैं और ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस तरह उसे इज्जत दे रहे होते हैं, तो आप वाहिद शख्स को भी जमा बना देते हैं, हकीकी मायनों में नहीं बल्कि इज्जत देने के लिए। लिहाजा जब अल्लाह सुब्हानो ताला अपने मुतल्लिक फरमाता है, बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया है, इससे अल्लाह की इज्जत अफजाई जाहिर होती है और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अल्लाह एक से ज्यादा हैं।
मगर कुछ जगहों पर अल्लाह ने खुद को मैं भी कहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरह बात में मजीद जोर दिया जाता है। चले अल्लाह ताला के इस अंदाज को मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुरान में किसी शख्स से बराह रास्त बात करता है और कभी वो किसी को मुखातिब करता है मगर थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल करता है। मसलन कुरान की 80वीं सूरा आबस देखें। इस जुमले के लफ्जी मायने ये हैं, उसने त्यूरी चढ़ाई और रुख फेर लिया। अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थर्ड पर्सन के सीगे में बात कर रहा है। इस सूरत हाल का तस्वुर इस तरह करें कि आपका एक बच्चा है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कुछ कारोबारी साथियों या शायद बॉस के साथ, और वह सब डिनर के लिए आए हैं। आपका बच्चा आपके पास आता है और कुछ कहता है जिसे आपको बड़ी शर्मिंदगी होती है। आप कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे? एक तरीका यह है कि आप बराह रास्त अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। उससे कहें, अरे ये मुनासिब नहीं था, मैं इस वक्त तुम्हारी जुबान से बात नहीं सुनना चाहता। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों की तरफ मुड़े और कहें, यह भी बच्चा ही तो है, ये सीख रहा है, इसे समझ नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में कितना फर्क है। इस अंदाज में थोड़ी बहुत मलामत है। तो जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को बयान किया तो इसमें मलामत शामिल है, क्योंकि अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि आपने त्यूरी चढ़ाई और आपने मुंह फेर लिया। अल्लाह ने फरमाया उसने त्यूरी चढ़ाई और उसने मुंह फेर लिया। लिहाजा अल्लाह जो अंदाज भी इख्तियार करता है वो उस पैगाम के मुताबिक होता है जो वो देना चाहता है। लिहाजा कभी जब वो अपनी अजमत का इजहार फरमाता है तो अपने लिए जमा का सीगा हम इस्तेमाल करता है, हमने ये किया और हमने वो किया। और बाज़ औक़ात जब अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी कुर्बत और फौरी मौजूदगी का इजहार करना चाहता है और आपको अपने साथ एक करीबी ताल्लुक कायम करने का मौका देना चाहता है तो वाहिद सीगे का इस्तेमाल ज्यादा मुनासिब होता है। अल्लाह जो उसने मूसा से फरमाया था जब उन्हें एक निशानी जलती हुई आग नजर आई थी, वहाँ अल्लाह ने अपने लिए फर्स्ट पर्सन का सीगा इस्तेमाल किया क्योंकि वो बहुत कुर्बत वाली सूरत हाल थी और कभी इससे गुस्से का इजहार भी मतलूब होता है। इसके बहुत से मुख्तलिफ मकासिद हैं, लेकिन अहम बात यह है कि तमाम चीजें कुरान के मौज़े का हिस्सा हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला इन तमाम अंदाज को एक खास नतीजा हासिल करने के लिए किसी तरह से इस्तेमाल फरमाता है। इमाम टॉम फकीनी, आपके जवाबात का शुक्रिया। अगली बार हम आपके लिए मजीद मुश्किल सवालात लाएंगे। मुझे उनका इंतजार रहेगा।